नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी हार निश्चित। सिलीगुड़ी में एक जनसभा को भाग लेने के लिए पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आज न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर में जितनी वोट से हारती है उससे ज्यादा वोटों से नंदीग्राम में हारेगी। कहीं से भी चुनाव लड़े, आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी हार निश्चित है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद खोजने से भी तृणमूल कांग्रेस की पार्टी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी के बागा जतिन मैदान में आयोजित जनसभा में दिलीप घोष भाग लेंगे। বিজেপি ওভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে না, কোনো ব্যক্তি পার্টি নাই। বিজেপির সিস্টেম আছে, পার্লামেন্টারি বোর্ড আর প্রার্থী ঘোষণা করবে, যথাসময়ে সেটা হবে। 1 লাখের উপরে জিতবে তৃণমূল নেত্রী এমন দাবি করছে। কে দাবি করেছে? আগে তো পার্টিটা থাক, তারপরে জিতা হারা হবে। সেজন্য মমতা ব্যানার্জি নিজে ভবানীপুরে জিততে পারেন বলে আজকে নন্দীগ্রাম যাওয়ার কথা বলছেন। ভবানীপুরে যা ভোটে হারবেন তার চেয়ে বেশি ভোটে নন্দীগ্রামে হারবেন। চাঙ্গা হয়েছে বলে কোথাও মনে হচ্ছে কি? দেখা যাচ্ছে নেতাদের কোথাও রাস্তাঘাটে সব জায়গাতে বিজেপি দেখা যাচ্ছে, বিজেপি ঝান্ডা দেখা যাচ্ছে, বিজেপি সভা দেখা যাচ্ছে, বিজেপি যোগদান মেলা দেখা যাচ্ছে। যার মন্ত্রী পালিয়ে যাচ্ছে, এমপি এমএলএ পালিয়ে যাচ্ছে পার্টি ছেড়ে, কাউন্সিলর চেয়ারম্যান পালিয়ে যাচ্ছে, তার চাঙ্গা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। সোরামিন দিলেও চাঙ্গা হবে না, সেটা আমি বলতে পারবো না। শিশিরবাবু খুব পুরনো পলিটিশিয়ান, পুরনো নেতা, তিনি জানেন কি করবেন, কোথায় যাবেন, যোগ দেবেন কিনা। হ্যাঁ, যদি আসেন আমরা তাকে স্বাগত করে সাদরে গ্রহণ করব। শতাব্দীতে এলেন না লাস্ট মোমেন্টে। কে এসেছে, কে আসবে, কবে আসবে সেটা তো জানা যায় না। অনেকে অনেক কিছু বলেছিলেন, শুনছেন তোকে কি আগে বলেছেন, তারপরে কি করেছেন। অপেক্ষা করুন, সময় এখন অনেক আছে। मालदा में बीजेपी कर्मी के घर से बरामद हुआ बम, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। मालदा के चांचर थाना पाड़ा इलाके में एक बीजेपी कर्मी के घर की खिड़की से 2 ताजा बम बरामद किया गया। बम बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह बम रखा गया था। वहीं बम की खबर मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड के दस्ते मौके पर पहुंचकर बम को बरामद कर अपने साथ ले गए। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिस बीजेपी कर्मी के घर में बम बरामद हुआ है उसका नाम शिवशंकर दास है। उसकी पत्नी ने बताया कि हम लोगों की इस इलाके में किसी से दुश्मनी नहीं है, निश्चित तौर पर सत्ता दल के द्वारा बम रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि 2 बम यहाँ पर रखे हुए थे जिसको पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड के दस्ते निष्क्रिय करने के लिए ले गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। কে বা কারা শিবশঙ্কর দাসের বাড়ি? আমাদের সক্রিয় কর্মী ভারতীয় জনতা পার্টি থানা পাড়ার, তার বাড়ির জানলার উপরে বোম রেখে দিয়ে গেছে। এটা এই অ্যাক্টটাকে আমরা নিন্দা করছি, কারণ চাঁচলে এরকম পরিবেশ আগে কিন্তু রাজনৈতিক পরিবেশ এরকম ছিল না। প্রতি দলের সাথে, সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক বা তৃণমূল, সকলের সাথে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ বা এসব আমাদের ছিল, সকলের বাড়ি যাওয়া আসা। কিন্তু এই গত 2 বছর ধরে দেখছি যে এই সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কে বা কারা এই সম্পর্কগুলো বা চাঁচলবাসীর মধ্যে একটা পলিউটেড তৈরি করছে। মঞ্চ ভাঙা, তারপরে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীকে ধরে মারা, এইরকম আগে কখনোই ছিল না। এই 2 বছর ধরে তৃণমূলের লোকেরা জেনারেলি এই চাঁচলের এই রাজনৈতিক পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এবং সামনে বিধানসভা ভোট এবং এই সময় মানুষকে ভয় দেখানো, থানাপাড়া, বাজারপাড়া, এগুলো হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির গড়। এই জায়গাগুলোতে মানুষকে ভয় দেখানো, আতঙ্কিত করা, এটা পরিবেশে, এটা ওদের মানসিকতার মধ্যে এসছে যে এই জায়গার লোকেদের একটু ভয় দেখিয়ে যদি কিছু করা যায়। কিন্তু আমার মনে হয় যে এগুলো করে কোনো লাভ হবে না। পুলিশ প্রশাসন আছেন, ওনাদেরকে আমরা আগ্রহ করছি যাতে সঠিকভাবে তদন্ত করে যাতে কে বা কারা এসব করছে তাদের যাতে উপযুক্ত শাস্তি হয়, এটাই আবেদন রাখবো পুলিশ। আজকে সকালে আমার ওয়াইফ এসে দেখছে যে জানলাতে 2টো
এরকম বোমের মতো কি জিনিস রাখা। তারপর আমাকে ডাক দিল, এসে দেখলাম, দেখে মনে হলো বোমের মতো, বাস এতটুকুটা। কে বা কটা বোম রাখা হয়েছে? 2টো বোম রাখা হয়েছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, আমরা গিয়েছিলাম সবাই মিলে, দিয়ে পুলিশকে বললাম। কি মনে হচ্ছে কারা রাখতে পারে এটা? তো সেরকম কোনো কিছু মানে বুঝতে পারছি না যে এরকম কে করলো। প্রথম কথা হলো বিজেপি একটি মানে সন্ত্রাসবাদী দল। সাম্প্রদায়িক তো আছে, এটা সন্ত্রাসবাদী দল। এরা মাঝে মাঝে এরা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করে। এদের কাজ হলো নিজেরাই বোমা রেখে বাড়িতে আর নিজেরাই হাইলাইট করানো তাদের কাজ। এবং তারা এটাও হতে পারে সামনে নির্বাচন আছে, সেই নির্বাচনকে লক্ষ্য করে তারা বোমা হয়তো স্টক করার ব্যবস্থা করছে, যে আগামী নির্বাচনে সন্ত্রাসবাদী করে তারা হয়তো ভোট করবে। কারণ তারা তো বুঝে গেছে যে আমরা তো আর নাই, এখানে তৃণমূল পশ্চিমবাংলাতে সরাতে পারছি না। তার জন্য যদি গণ্ডগোল করে বা আর কিছু করে আমরা চেষ্টা করি, তাই করছে, এইসব বম টম নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করছে। देश में अब तक 3.80 लाख लोगों को लगा टीका, 580 लोगों पर दिखा साइड इफेक्ट। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू हुए 3 दिन हो गए हैं। इस दौरान 3.8 लाख लोगों को कोविड टीका लगाया गया, जिनमें से 580 प्रतिकूल प्रतिक्रिया के मामले सामने आए। 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की मौतें हुई है, लेकिन इन मौतों को वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने बयान में कहा कि 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू होने के बाद प्रतिकूल असर में अब तक 580 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 को छुट्टी मिल चुकी है और 1 को मैक्स अस्पताल पटपड़गंज में निगरानी में रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को निगरानी में रखा गया है, जबकि कर्नाटका में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतिरिक्त सचिव ने बताया कि टीके के गंभीर दुष्प्रभाव के मामले अब तक नहीं आए। वन बंधु का धरना 78 दिन भी जारी। नौकरी में प्राथमिकता देने, वेतन निर्धारित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर वन बंधु का आंदोलन लगातार जारी है। ये सभी जलपाईगुड़ी आर्यन भवन के सामने पिछले 77 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उत्तरबंग वन बंधु नामक संगठन के अध्यक्ष अनंत रॉय ने बताया कि उनका आंदोलन लगातार जारी है। इतने दिनों तक यहाँ धरने पर बैठने के बावजूद अब तक वन विभाग के कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि ठंड में जलपाईगुड़ी आर्यन भवन के सामने वे लोग धरना दे रहे हैं, पर उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। न ही राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आया है और न ही वन विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पहुंचकर उनकी सूद ली है। उन्होंने कहा उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज के लिए हमारे आंदोलन पड़लो 78 दिन। ए पर्यन्त कोनो वन आधिकारिक आमादेर संगे देखा करते आसेनी। तो एर आगे आमादेर असुस्थ हयेछिल 2 जन। ওরা জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটালে অ্যাডমিট ছিল। 2 দিন থাকার পর ওরা সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যায়। এখনো আমাদের গতকালকে আমাদের একজন অরণ্য বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ে আন্দোলন মঞ্চে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাদেরকে আমরা বাড়িয়ে পাঠিয়ে দিই সুস্থ করে। তো এই শীত কুয়াশার দিনে আমরা জলপাইগুড়ি অরণ্য ভবনের সামনে বসে আছি। তো এখনো পর্যন্ত কোনো বন আধিকারিক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসলো না। যদি আমাদের কোনো অরণ্যবন্দির কোনো ক্ষতি হয়, একমাত্র দায়ভার থাকবে জলপাইগুড়ি অরণ্য ভবনের বড় বড় আধিকারিকরা। ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले में आज सुबह घना कुहासा छाया रहा। मकर संक्रांति के बाद ही उत्तर दिनाजपुर जिले में भयानक ठंड पड़ रही है और दिन दोपहर तक घना कुहासा रहता है। आज मंगलवार सुबह को घना कुहासा देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 34 नंबर पर गाड़ी चालकों को लाइट चलाकर काफी धीमी गति से वाहन चलाते दिखाई दिए। दूसरी ओर रेलगाड़ियों के परिचालन में भी असर पड़ा है। आम जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग बिना आवश्यक कार्यों से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई जगह लोग आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल।
whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव. प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ. इसके हैं फायदे अनेक. काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं. सफाई बिल्कुल आसान. मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा. प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक. कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान. बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम. घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध. महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड. कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981. खुट्टा सुनिनु भएको छ. मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे. म एकदमै जाती हुँदै थिएँ. तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो. मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा. साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा. निकै सन्चो भएको थियो. अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ. खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो. तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ. सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है. SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है. सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं. हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है. सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में. तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. बढ़ते हैं खबरों की तरफ. पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएंगे सुभाष चंद्र बोस की जयंती. संस्कृति मंत्रालय ने की घोषणा. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चेहरों में से एक सुभाष चंद्र बोस की जयंती इस बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएंगी. इस बात की जानकारी संस्कृति मंत्रालय की ओर से दी गई है. इससे पहले नेताजी की 125वीं जयंती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता सर्वविदित है. नेताजी जैसे स्कॉलर, सोल्जर और स्टेट्समैन की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों की घोषणा हम जल्द करेंगे. स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. वहीं संस्कृति मंत्रालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि समिति अगले 23 जनवरी से 1 वर्ष तक 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर किए जाने वाले कार्यक्रम व समारोह की रूपरेखा तय करेगी. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने नए सिरे से ICDS परीक्षा लेने की मांग की. दिया गया धरना. रविवार को ICDS परीक्षा के दौरान कई सेंटर में देर से पहुंचा प्रश्न पत्र, कई सेंटर में कम पहुंचे प्रश्न पत्र. अलीपुरद्वार जिले में रविवार को ICDS परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र समेत अन्य बद इंतजामी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जिले के विभिन्न BDO कार्यालय व डूअर्स कन्या के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया. ये सभी रविवार की परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से ICDS की परीक्षा लेने की मांग कर रहे थे. गौरतलब है कि अलीपुरद्वार जिले में कई स्कूलों में ICDS की परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन अधिकतर परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र देर से आने या फिर कम संख्या में प्रश्न पत्र आने के मामले सामने आए. परीक्षा में इस बद इंतजामी के कारण काफी संख्या में महिला परीक्षार्थियों की नियुक्ति परीक्षा नहीं दे पाई. इन अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ कल विभिन्न परीक्षा केंद्रों के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया. प्रदर्शनकारियों ने बताया था कि दोपहर 12 बजे परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन 1 बजे तक कई सेंटरों में प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा. दूसरी ओर कई सेंटरों में कम संख्या में प्रश्न पत्र आए, जिससे काफी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे सके. परीक्षा को लेकर इस तरह की अव्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने कालचीनी ब्लॉक, फालाकट्टा ब्लॉक, अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक समेत जिले के विभिन्न ब्लॉक ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया. मोर्चा सदस्यों ने डूअर्स कन्या के सामने भी धरना प्रदर्शन किया. भाजपा नेताओं ने सरकार पर महिला परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ
खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए रविवार की परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की मांग की। এর উত্তর কে দিবে? তৃণমূল কংগ্রেসকে দিতে হবে, তৃণমূল কংগ্রেস জেলা নেতৃত্বকে দিতে হবে, জেলা প্রশাসনকে দিতে হবে, ডিএমকে দিতে হবে। আর এত লোককে, এত আলিপুরদুয়ার জেলার মা বোনকে এখানে নিয়ে আসে, আর 3টার পরে যখন প্রশ্নপত্র 3টায় চলে আসলো একটা স্থানীয় প্রেস থেকে তাকে ছাপিয়ে নিয়ে আসা হলো, আর সেখানে অনেক ত্রুটি। আর তখন প্রশাসন বলছে আলো নাই স্কুলে, আমরা এখন এক্সাম নিতে পারবো না। এটা কি চলছে? আমি মনে করি বাংলার মানুষের সাথে এটা কিন্তু জঘন্য অত্যাচার করা হচ্ছে। সেজন্য আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, আলিপুরদুয়ার জেলাতে 88টা পদ আছে এই যে আইসিডিএস চাকরির জন্য, আর 27,000 প্রার্থীরা নকরির জন্য বা এক্সাম দিয়েছেন বা এক্সাম দেওয়ার পথে আছেন। এবার 88 পদ আর 27,000 প্রার্থী। তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু এই 27,000কেই বলেছে আপনারা আমাদের পাশে থাকুন, আপনাদের সবারই চাকরি হবে। অথচ চাকরি কতজনের হবে? 88 জনের হবে। তো এই যে ভাওতাবাজি এখন আলিপুরদুয়ার জেলার মা বোনেরা বুঝেছেন, আর তাদের পাশে আমরা আছি বলেই আজকে আমাদের এই যে অবস্থান বিক্ষোভ। আমরা এই যে সম্পূর্ণ পরীক্ষা যেটা আইসিডিএসের জেলাতে হয়েছে সেটাকে বাতিল করতে হবে এই দাবি রাখছি। আর আমি আলিপুরদুয়ার জেলাবাসীকে বলতে চাচ্ছি, এই আইসিডিএসের নিয়োগ এই সরকার তো আর করতে পারবে না। যখন আমরা জুন মাসে চলে আসব, আমরা সেই স্বচ্ছতার সাথে পরীক্ষার আয়োজন করব, আর যারা প্রার্থী সুযোগ্য আছেন, যাদের পাওয়ার যোগ্যতা আছে, তাদেরকেই আমরা স্বচ্ছতার মাধ্যমে পরীক্ষা অ্যারেঞ্জ করে তাদেরকে আমরা এই জিনিসটা পাইয়ে দেব। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। इस बीच सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य तथा रायगंज के पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वहां आध्यात्मिक कारणों या नंदीग्राम वासियों के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। वहां पर देसी विदेशी कंपनियों को काफी लेन देन हुआ है। मुख्यमंत्री ने वहां पर उद्योग धंधों को स्थापित नहीं होने दिया। স্বৈরাচারীরা যারা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে তারা এইভাবেই বলে। লোকসভা নির্বাচনের সময় মোদি বলেছিল গোটা দেশে তাই সেই প্রার্থী। এই রায়গঞ্জে যদি জিজ্ঞেস করো কাকে ভোট দিয়েছেন, কেন ভোট দিয়েছেন, কে তার নাম বলতে হবে, কাকে ভোট দিয়েছে, মোদিকে রেখে ভোট দিয়েছিল। ওরকম মমতা ব্যানার্জি বলেছেন কনসাসলি 294 আমি প্রার্থী। আর এই যে বলছে নন্দীগ্রামের সঙ্গে আর্থিক যোগাযোগ হচ্ছে, আর্থিক যোগাযোগ অনেক টাকা পয়সার লেনদেন হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, যেমন কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয় সেরকম শিল্পের ভ্রূণ হত্যা করেছিলেন, সম্ভাবনার ভ্রূণ হত্যা করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি দেশি বিদেশি পুঁজির টাকায়। পেট্রোকেমিক্যালস নন্দীগ্রামে, এবং আমরা একটা নতুন করে পেট্রোকেমিক্যালস কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে চাইছিলাম। আমাদের দেশে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স কোম্পানি হচ্ছে গোটা পেট্রোকেমিক্যালসের মনোপলি। তারা হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস নিতে চেয়েছিল, আর সেখানে দাঁড়িয়ে গোটা পশ্চিম উপকূলে, দক্ষিণ উপকূলে যখন পেট্রোকেমিক্যালস কমপ্লেক্স হচ্ছে, নতুন ইন্ডাস্ট্রি, তখন পূর্ব ভারতে নেই। আমরা অনেক লড়াই করে তবে আদায় করতে চেষ্টা করেছিলাম। আর সেখানে দাঁড়িয়েই ওই টাকাতে, ওই আর্থিক জগতেই বাকি সব শেয়ারের একরা হয়েছিল। আজকে শুভেন্দু বলছে কি যে আরএসএস সে টাকাতেই তৃণমূলের ভবন তৈরি হয়েছিল, বিজেপির রসদেই তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল। আর আজকে দেখাচ্ছে যেন বিজেপির সঙ্গে লড়তে যাচ্ছেন। আসলে এগুলো হচ্ছে ভাগ বাটোয়ারার লড়াই। নন্দীগ্রামে তো ভূমি উচ্ছেদ কমিটি তৈরি হয়েছিল, এই সিঙ্গুরে তিনি তৈরি করেছিলেন মাওবাদী আর অন্য সবাইকে নিয়ে ভূমি কৃষিজীবী জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি। আজকে যখন গোটা দেশের কৃষকরা তাদের ফসলের অধিকারের জন্য লড়ছে, এমএসপির জন্য লড়ছে, যখন দাঁড়িয়ে ভূমির রক্ষার জন্য লড়ছে, জিও টাওয়ারকে বয়কট করছে, আম্বানিকে বয়কট করছে, আর আদানি আম্বানিকে যখন কৃষিটা তুলে দিচ্ছেন মোদি, তখন মমতা তৃণমূল কংগ্রেস ওই ভূমি উচ্ছেদ কমিটি গেল কোথায়? ওই জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি গেল কোথায়? কিষাণ সেল গেল কোথায়? তাহলে বোঝা যাচ্ছে না ওইগুলো সব নাটক ছিল। আজকে যেটা করছেন সেটা নাটক। মোদ্দা কথা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবরা কাজ চায়। গত 10 বছর তাদেরকে ভাতা দিয়েছেন, রেলমন্ত্রী ভাতা দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী ভাতা দিয়েছেন। এখানকার রাজ্যের মানুষ শিল্পায়ন চায়, এখানকার কৃষিরা তার যে কৃষি সংকট আছে তার থেকে মুক্তি চায়। মমতা ব্যানার্জির সিলেবাসে এগুলো নেই। তিনি হিস্ট্রিয়া তৈরি করে তিনি এইসব চেঁচামেচি করতে পারেন, হইহল্লা করতে পারেন, আর কিছু ভাড়াটে গুন্ডাদের দিয়ে লুটচার্জ করতে পারেন, হামলা করতে পারেন, মামলা করতে পারেন। শুভেন্দুকে দিয়ে যে গুন্ডামিটা করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি, এখন তো বোঝা যাচ্ছে শুভেন্দু বা মুকুল মমতা ব্যানার্জির গাড়ি, মমতা ব্যানার্জির বাড়ি, মমতা ব্যানার্জির ঝান্ডা, মমতা ব্যানার্জির মুখ ব্যবহার করে আসলে আরএসএসের কাজ করেছিল। এ রাজ্যের মানুষকে হিন্দু মুসলমানে ভাগ করে দেওয়া।
এবং তার ভিত্তিতে কিছু লুটতরাজ করা। চিটফান্ডের কাজ করেছিল তারা, এখন চিটিংবাজির কাজ করছে এবং এই চিটিংবাজিতে তৃণমূল এবং বিজেপি দুজনেই যুক্ত। नौकरी की मांग में पूर्व केएलओ लिंकमैन ने अनशन पर बैठने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री ने समाज की मुख्य धारा में लौटने पर स्पेशल होमगार्ड की नौकरी का दिया था आश्वासन। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद स्पेशल होमगार्ड की नौकरी नहीं मिलने से खफा पूर्व केएलओ लिंकमैन ने अनशन पर बैठने की धमकी दी है। मालदा जिले के हबीबपुर, वामनगोला, गाजोल समेत कई अन्य ब्लॉक के करीब 130 पूर्व केएलओ लिंकमैन ने स्पेशल होमगार्ड की नौकरी की मांग में आज से अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। सोमवार को ये सभी मालदा जिला प्रशासनिक भवन परिसर में एकत्रित होकर मीडिया के समक्ष इस बात का ऐलान किए थे। पूर्व केएलओ लिंकमैन दुलाल बर्मन, हरीश चंद्र बर्मन आदि ने बताया कि केएलओ से नाता तोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें स्पेशल होमगार्ड की नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बावजूद उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली। इससे दुखी होकर मंगलवार से वे सभी अनशन पर बैठने का फैसला लिए। কেএলও এবং কেএলও লিঙ্কম্যান আমরা এখানে এসেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2011 সালে যখন ক্ষমতায় আসেন উনি আমাদের সবাইকে কেএলও এবং কেএলও লিঙ্কম্যানদের জেলে পুরে দেন। তারপরে আমরা সেখান থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ জেল খাটার পর বেরিয়ে এসে উনি তখন আহ্বান করলেন যে যারা কেএলও এবং কেএলও লিঙ্কম্যান আছেন তারা সবাই মূল স্রোতে ফিরে আসো। ওই দিনেই ঘোষণা করলেন যারা কেএলও এবং কেএলও লিঙ্কম্যান স্পেশাল হোমগার্ড পদে। সেই মোতাবেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আমরা অনেকেই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বরে লিখিত আবেদন করেছি ডিএম এবং এসপির কাছে। কোন বছর? কবে করেছেন? 2020 নভেম্বর, ডিসেম্বর, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বরে 2020। এমতো অবস্থায় আমরা মাঝে মধ্যে মালদায় আসি এবং এই অফিস ওই অফিস ঘোরাঘুরি করি। এখন পর্যন্ত আমরা সব উত্তর পাচ্ছি না যে আমরা আদৌ কি আমাদের চাকরি হবে কি হবে না, আমরা সেই সাহস করে বলতে পারছি না। তবে উনি ঘোষণা করেছেন এর আগে কিছু টাকা নিয়োগ হয়ে গেছে 400 জন। আবার উত্তরকন্যায় এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 600 জন নেবেন। সেই মোতাবেকে আমরা লিখিত আবেদন করেছি। এখন পর্যন্ত আমরা সদুত্তর পাইনি। তো আমাদের কবে চাকরি হবে কি আদৌ হবে না সেই বিষয়ে আজকে আমরা এখানে এসেছি। फुटपाथ में सो रहे मजदूरों को ट्रक ने कुचला, 15 की मौत, 3 की हालत गंभीर। गुजरात में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया है। सूरत के कोसांबा गांव के कीम रोड पर एक ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मरने वाले सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले हैं। घटनास्थल सूरत से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह घटना सूरत की मांडवी रोड पर रात 12 बजे घटी है। यहाँ एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने लिखा, सूरत में एक ट्रक दुर्घटना के कारण लोगों की मौत होने से दुखी हूँ। मेरी सांत्वना शोक संपन्न परिवार के साथ है। प्रार्थना है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।